Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Hamna Fatima, and today we will discuss electrolyte management. In fluids therapy, this is the portion of your chapter that how to treat electrolyte, uh, how to balance the serum electrolyte levels. So, previously we discussed about the fluids therapy, and in fluids therapy we discussed about the composition of plasma. So, we discussed about the extracellular and intracellular compartments. As we know, sodium is the principal cation of extracellular fluid. Average daily requirement is 1 millimole per kg per day. So, if the person having weight 60 kgs and its requirement is 1 to 2 millimoles, then it comes 120. So the normal serum values is 137 to 147. So it quite matches the if the 2 millimole requirement and weight is 60 kgs, so value somehow equal आ जाती है. While intracellular level is 3.5 to 4.5 milliequivalent per liter. So we need to discuss about hyponatremia. When the sodium levels are below 137, it comes in hyponatremia or plasma sodium level less than 135. So hyponatremia, and now if the hyponatremia is remain untreated, it can cause substantial morbidity and mortality as a result of osmotically induced cerebral edema. What happens that if there is decrease in sodium levels, means it will cause severe neurological impairment as a result of osmotic demyelination. So what happens that when there is hyponatremia and you treat it with when the hyponatremia develops, body actually adapts. बॉडी क्या करती है कि अडाप्ट करती है उसके जो ब्रेन सेल्स हैं, वो जो हाइपोस्मोटिक ऑस्मोलैलिटी डेवलप हुई है इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज सोडियम लेवल्स बाय रिड्यूसिंग द इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैलिटी. जब सोडियम लेवल कम होता है तो मींस इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं, सोल्यूट्स कम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ऑस्मोलैलिटी, जो कि ऑस्मोलैलिटी कहते हैं सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को, तो वो कम हो जाती है. तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मल सेल वॉल्यूम को मेंटेन करता है. जब सोल्यूट्स कम होते हैं, होता क्या है कि अगर सोल्यूट्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर में गए तो बाहर की तरफ पानी भी उनके साथ जाता है. सोल्यूट्स अट्रैक्ट वाटर, सो सेल एक वॉल्यूम को मेंटेन करता है. सब जब आप इस तरह के सिचुएशंस में under these conditions, an abrupt increase in extracellular osmolality can lead to water shifting out of neurons. अब सोडियम एक्स्ट्रासेलुलर में ज़्यादा गया है तो क्या कहते हैं, लीड टू वाटर शिफ्टिंग, वो भी फिर बाहर की तरफ जाता है. abruptly reducing their volume and causes them to detach from the myelin sheaths. वो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा है आपके पास न्यूरॉन्स की. उसकी वजह से क्या होता है कि myelin sheath
न्यूरॉन से डिटैच हो जाती है. This resulting myelinosis can produce permanent structural and functional damage to the midbrain structure. So, this is the case of hyponatremia and hypovolemia. Here it causes spontaneous myelinosis. So, वो कहता है कि इस केस में आपको प्लाज्मा जो करेक्शन करनी है इन क्रॉनिक एसिम्प्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया शुड नॉट एक्सीड 10 मिलीमोल पर लीटर पर डे एंड इवन स्लो रेट इज जनरली सेफर. तो यहाँ पे ये तो एक ही बात कर दी. अब वो कहता है कि जब आप हाइपोनेट्रीमिया can cause severe neurological impairment and death as a result of osmotic demyelination. Same, जब सोडियम लेवल्स इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर में जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, पानी को भी अपने साथ ले जाएगा और डिटैच हो जाती है इस केस में एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन. ठीक है, डीमाइलिनेशन हो जाती है. सो हाइपोनेट्रीमिया कैन अकर बाय इंक्रीज इन टोटल. अब हाइपोनेट्रीमिया कैसे हो सकता है, देखें, या तो आपने पानी को ज्यादा कर दिए, ठीक है, या तो सोडियम की कमी हो गई है, पानी सेम है. समझे, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आप नमक डाल दें, ठीक है, या तो 1 चम्मच आप नमक रहने दें और 2 गिलास पानी कर दें, तब भी हाइपोनेट्रीमिया हो गया ना. 2 गिलास पानी में 1 चम्मच है जहां पे, और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच है. सिमिलरली, या तो आप वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दें, या 1 गिलास पानी में एक चम्मच नमक है और 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक है. सेम इज द थिंग. क्या हाइपोनेट्रीमिया, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम हो गई है. अब जो पिछली बात थी वो समझाने के लिए की थी. बेसिकली सोडियम आपके पास एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है. सो इन केस ऑफ हाइपोवोलेमिक natremia, sodium deficit with a relatively smaller water deficit. सोडियम की तो कमी हो ही रही है, ठीक है, और साथ पानी की भी कमी हो रही है. अब इसमें एग्जांपल्स कौन सी आती हैं, रीनल सोडियम लॉसेस, या वॉमिटिंग है, डायरिया है, या आपकी डायूरेटिक थेरेपी जो थायराइड्स करते हैं. Based upon volume status, administer isotonic saline to re-expand the contracted intravascular volume. यूवोलेमिक में क्या होता है, वाटर रिटेंशन अलोन, ठीक है, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया. अब यूवोलेमिक में होती है वाटर रिटेंशन से ही हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो रहा है. उसके अंदर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी आता है. अब सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कहता है, आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना. क्या एंटी डायूरेटिक का काम है, डायूरेसिस नहीं कराना, मतलब यूरिन को मजीद एक्सक्रीट नहीं कराना, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है, ठीक है. वाटर को नेफ्रॉन से या उसकी टब्यूल से जब वो गुजर रहा होता है, नॉर्मली यूरिन ने एक्सक्रीट होना होता है या एक्स्ट्रा वाटर ने बाहर की तरफ आना होता है कि ये यूरिन को कम प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करा देगा. जब रीअब्सॉर्ब कराएगा होगा क्या, अब यूरिन आपका कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है. और क्या होगा, जब पानी यूरिन की फॉर्म में बाहर जाने की निस्बत प्लाज्मा में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी ना. प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी 100 मिली ऑस्मोल से ज्यादा हो जाएगी, प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी लेस देन 280 हो जाएगी, ठीक है. और पानी अंदर जाई जा रहा है तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा. सो इस तरह की जब आपके पास कंडीशंस आती हैं तो आप इसको, एक तो इसको सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन कहते हैं और एक इस कैटेगरी में आता है यूवोलेमिक
हाइपोनेट्रीमिया, वाटर रिटेंशन हो रही है बेसिकली। अब इसमें आपके पास, आप पेशेंट को वाटर इनटेक से मना करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रीट दिस कंडीशन। वाटर रिस्ट्रिक्शन टू 1 लीटर एंड कॉजेटिव फैक्टर, अगर तो वो रिफ्रैक्टरी से ऐड है तो आप उसको ड्रग्स देते हैं, डिमिक्लोसाइक्लिन, ठीक है। अब हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, इफ सोडियम रिटेंशन विद relatively greater water retention। इसकी एग्जांपल में टर्ब सिंड्रोम आता है, जिसे कहते हैं मे रिजल्ट इन सेरेब्रल एडिमा और पल्मोनरी एडिमा। इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। इट शुड बी ट्रीटेड विद हाइपरटोनिक सलाइन। होता क्या है, ठीक है, आपके पास वाटर रिटेंशन ज्यादा होती है। दिस इज द केस ऑफ सेरेब्रल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा। अब आपने क्या और करना है, इसके अंदर हाइपरटोनिक सलाइन आप देंगे, बट वो कहता है कि हाइपरटोनिक सलाइन आपने उसको एकदम नहीं ट्रीट करना, ठीक है। अब इसमें जो हाइपोनेट्रीमिया डेवलप होता है, इसको आपने किससे ट्रीट करना है, क्योंकि सिवियर हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो रहा है। इट शुड बी ट्रीटेड विद हाइपरटोनिक। अब जो हाइपरटोनिक आपके पास सब्सटेंसेस आते हैं, उनमें या तो सेलाइन आता है या मैनेटॉल। मैनेटॉल इज द, आप कह लें कि सोडियम, सॉरी, ये जो आपका सेरेब्रल एडिमा की ट्रीटमेंट है ना, इसमें बेस्ट यूज होता है। जितने भी हेड ट्रॉमा के केसेस आते हैं, एडिमा डेवलप होता है, उसमें आप ऑस्मोटिक डायूरेसिस देते हैं, जिसमें अंदर आता है मैनेटॉल। और ये भी आपके पास हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड्स में आते हैं। एक तो ये हाइपरटोनिक सलाइन भी इसी में आता है, इसी कैटेगरी में। सो अब जो रैपिड कनेक्शन, अगर आप हाइपोनेट्रीमिया, ब्रेन सेल्स अडेप्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो अब जब आप इसको सडनली उसको इतना हाइपरटोनिक फ्लूइड दोगे, तो क्या होगा, न्यूरॉन्स की माइलिनोसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से परमानेंट डैमेज होने के खतरा होता है। एक और वो इसने क्या किया कि प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन की जो आप करेक्शन करते हैं, वो 10 मिलीमोल पर डे से ज्यादा ना दें, इसके ज्यादा नुकसान होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया क्या हो सकते हैं? इट इज ऑफन एसिम्प्टोमेटिक बट which can also be associated with profound disturbances of cerebral function, manifesting as anorexia, nausea, vomiting, confusion, lethargy, seizures, fatigue, muscle cramps, and coma. कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं? बिलफर्स, एक पेशेंट का सोडियम लेवल 120 है, 140 माइनस मयर्ड 120, 20 आ गया, 20 इंटू 0.2 वेट इन केजी, समझो आप कह लो 60 केजी वेट है। सो मैं इसको कैलकुलेट करके बता देती हूँ आपको। 140 माइनस 120, 20 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.2 से, 4 आया, 4 को आप मल्टीप्लाई बाय कर दें, 60 केजी वेट है, 240। 140 माइनस 120 क्या है, 20 आ गया, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, मयर्ड सोडियम, ठीक है। तो ये 240 आ रहा है। अब हाइपरनेट्रीमिया किसे कहते हैं? हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं ग्रेटर देन 145 मिलीमोल। अब
हाइपरनेट्रीमिया के केसेस में आपके पास क्या-क्या आता है? उसने क्या है, वाटर लॉस अगर हो जाता है तो डेफ़िनेटली उसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा आ जाते हैं, सॉल्यूट ज़्यादा रह रहा है। एक तो ये कंडीशन भी आ जाती है, या तो सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा है, या तो वाटर लॉस की वजह से सोडियम कंपार्टमेंट में ज़्यादा रह रहा है। वो कहते हैं रिड्यूस्ड वाटर इनटेक, वॉमिटिंग, डायरिया, बर्न्स। बर्न से क्या होता है, आपके फ्लूइड लॉस होता है, हीट की वजह से भी होता है, मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। या डायबिटीज इंसिपिडस, हेड इंजरी, diabetes insipidus also it results in sodium gain, ठीक है। या excessive administration of sodium in the form of आप नॉर्मल सलाइन, ये जो लोग जाते हैं इमरजेंसी में, जो कहते हैं हमने ताकत की बोतल लगवानी है, इनको एक बहुत ज़्यादा एक आदत होती है कि नॉर्मल सलाइन लगवाना शुरू कर देते हैं। ये भी गलत होते हैं इतना नॉर्मल सलाइन लगवाना। एंड दिस इज़ नॉट अ ताकत की बोतल, ये सिंपल एक इलेक्ट्रोलाइट है जो आपके बॉडी फ्लूइड्स के साथ, आपके प्लाज्मा के साथ मैच करता है, and it gives you some electrolytes. So, treatment of hypernatremia depends upon both the rate of development and underlying cause. If there is a reason to think that the condition has developed rapidly, neuronal shrinkage may be acute and relatively rapid correction may be attempted. This can be achieved by infusing an appropriate volume of intravenous fluid. देखिए एक तो पहले ही उसके अंदर सोडियम लेवल ज़्यादा है, तो आप उसको 5% डेक्सट्रोज दें या हाइपोटोनिक दें, 0.45% सलाइन दें, जिसकी कंपोजिशन 77 होती है, at an initial rate of 50 to 70 ml per hour. However, in older institutionalized patient, is more likely that this disorder has developed slowly, and extreme caution should be exercised in lowering plasma sodium to avoid the risk of cerebral edema. जब आप ज़्यादा पानी देना शुरू करेंगे तो चांसेस हैं कि सेरेब्रल एडीमा डेवलप हो जाए, ठीक है ना। सो बहुत केयरफुली इसको मैनेज करें। अब पोटाशियम की अगर बात करें तो पोटाशियम की जो नॉर्मल रेंज है इन प्लाज्मा दैट इज 3.5 to 5 मिलीमोल। हमने आईसीएफ को इसके अंदर नहीं देखना होता, हमने इसके अंदर प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन को देखना है। प्लाज्मा या सीरम, सीरम इज द पार्ट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है ना। हाइपोकैलेमिया इज डिफाइंड एज द सीरम पोटाशियम कंसंट्रेशन लेस देन 3.5 मिलीमोल। अब ये इसके कॉज क्या हो सकते हैं कि पोटाशियम का इंटेक कम हो सकता है, या पोटाशियम आपका इन केस ऑफ मेडिकेशंस लाइक डायूरेटिक्स, स्टीरॉइड्स। अब ये जो आपका एल्डोस्टेरॉन क्या कराता है, सोडियम की रिटेंशन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, आपके एडी जो है ये एंजियोटेंसिन वाला सिस्टम है, इसमें सोडियम की रिटेंशन होती है, पोटाशियम एक्सक्रीट कराता है। सिमिलरली एल्डोस्टेरॉन भी यही करता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाता है, या आपके डायरेक्ट लॉस ऑफ पोटाशियम फ्रॉम द जीआई फ्लूइड डायरिया के केसेस में। So, renal loss of potassium to conserve sodium in response to gastric losses. So, hypokalemia is a very severe condition, generally asymptomatic, but more profound reduction in plasma potassium often lead to muscular weakness and associated tiredness. Patient complaint करता है muscular weakness की, because potassium आपके बॉडी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। सो जब पोटाशियम कम होगा तो मसल क्रैम्प्स की फीलिंग आएगी और टायर्डनेस की। सो ventricular ectopic beats or more serious arrhythmias may occur, and the arrhythmogenic effect of digoxin may be potentiated. हाइपोकैलेमिया है एक पेशेंट को, और अगर आप उसको डायजॉक्सिन दे देंगे तो वो आपके एरिथमियास को मोर एग्रावेट करेगा। हाइपोकैलेमिया के केसेस में आपको जब हाइपरकैलेमिया होता है तो टॉल टी वेव्स मिलती हैं। सो
जब हाइपोकैलिमिया होगा तो क्या होगा, आपके टी वेव्स को वो इन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है, टी वेव को अफेक्ट करती हैं। Functional bowel obstruction may occur due to potassium level is important in the gastric motility। जो पेरिस्टालसिस होती है उसकी फंक्शनिंग के लिए पोटाशियम का एक रोल है। जब पोटाशियम नहीं होगा तो क्रैम्प्स पड़ जाएंगे मसल्स में, जिस कंडीशन को कहते हैं पैरालिटिक आइलियस। लॉन्ग स्टैंडिंग hypokalemia causes renal tubular damage and interferes with the tubular response to ADH, acquired nephrogenic diabetes insipidus, resulting in polyuria and polydipsia. What happens that ADH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो सोडियम ज़्यादा होता जाएगा, पोटाशियम कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपने क्या करना है, if this problem is mainly one of the redistribution of the potassium into the cell, reversal of this, for example आपके पास आप अल्कलोसिस के केसेस में आपको मोस्टली हाइपोकैलिमिया मिलता है। सो जब आप अल्कलोसिस को ट्रीट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली हाइपोकैलिमिया का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, पोटाशियम लेवल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, क्योंकि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में हाइपोकैलिमिया होता है। सो आप यहाँ तो ऑरल उसको पोटाशियम दें in the form of milk, fruit juices and honey and banana। बनाना में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है। Effervescent tablets of potassium chloride 2 grams 6 hourly available in the market। यहाँ एक ये भी ऑप्शन है, आप उसको IV पोटाशियम दे दें, बट पोटाशियम का एक बात आपको मैं बता दूं, कभी भी पोटाशियम को डायरेक्ट नहीं देते, हमेशा से डेक्सट्रोज में देते हैं या डेक्स्ट्रोसलाइन में देते हैं, किसी फ्लूइड के साथ देते हैं, क्योंकि पोटाशियम बहुत खतरनाक होता है, ये आपके डायरेक्ट जाके कार्डियक सेल्स पे एक्शन करता है और अरिथमियास कराता है ये। सो हियर इज अ फॉर्मूला फॉर द correction of deficit, weight in kg multiply by 0.6 for the normal level होता है minus serum levels, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, and 0.6% means ICF where potassium is the main cation, ठीक है। this deficit should be added to daily requirement, ठीक है? So this is all। अब सेफ रूल्स फॉर गिविंग पोटाशियम, वही बात उसने की है। इट इज नेवर इंजेक्टेड एज अ bolus। पोटाशियम शुड बी एडेड इन 5% dextrose वाटर या नॉर्मल सलाइन और in any other crystalloid। Urine output should be at least 40 ml per hour before giving potassium, or not more than 40 millimole of potassium should be added to 1 liter of solution। If 1 liter of solution contains 40 millimole of potassium, it should not be transfused in less than 4 hours। मतलब आपको 6-7 घंटे लगाने चाहिए उसको खत्म करने में उस बॉटल को। So if magnesium depletion is also present, replacement of magnesium may also be required for hypokalemia to be corrected, since low cell magnesium can enhance the mechanism for tubular potassium secretion, thus causing ongoing urinary losses। In some circumstances, potassium sparing diuretics। अब जो आपके ये जो थायराइड डायूरेटिक्स हैं, ये तो पोटाशियम को एक्सक्रीट करा रहे हैं। अब जब आप पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देंगे तो क्या होगा कि पोटाशियम बॉडी में आएगी, पोटाशियम स्टोर होगी, मतलब स्पेयर हो गई है, यूरिन में जाने से बच गई है और बॉडी में आ गई है, प्लाज्मा में आ रही है, ठीक है। तो आपने पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दे देने हैं इस केस में, जिसके अंदर आपके पास ड्रग आती है एमिलोराइड, आई गेस यही नेम है ड्रग का। यहाँ पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, अगर और भी कोई हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। अब हाइपरकैलिमिया की क्या सिचुएशन होती है,
जब पोटाशियम लेवल 5.0 से ज़्यादा हो, या तो अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा पोटाशियम का इनटेक है, या तो जैसे आप पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स ले रहा है कोई पेशेंट, ठीक है। अब या तो इंक्रीज इनटेक कैन बी आइदर फ्रॉम ओरल और आईवी सप्लीमेंटेशन और फ्रॉम रेड सेल लाइसिस आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं तो उस केस में भी आपके पास पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो सकता है, या आपके मसल्स का आप कह लो मसल्स भी पोटाशियम लीक होती है, rhabdomyolysis and crush injuries can disrupt cell membranes and release intracellular potassium into extracellular fluid। आपके आरबीसीज में पोटाशियम लेवल होता है, उनकी हेमोलिसिस की वजह से भी आदत है, या पीछे हमने कहा था कि अल्कलोसिस कराता है हाइपोकैलीमिया। सो एसिडोसिस एंड अ रैपिड राइज इन एक्स्ट्रासेलुलर osmolality from hyperglycemia or IV mannitol can raise serum potassium levels by causing a shift of potassium ions to the extracellular compartment. Because 98% of the total body potassium is in the intracellular fluid compartment, even small shifts of intracellular potassium out of the intracellular fluid compartment can lead to significant rise in extracellular potassium. So, एसिडोसिस क्या करता है, आपके एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में पोटाशियम लेवल को इंक्रीज करा देता है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो पोटाशियम है वो आईवी मैनिटोल देते हैं, वो भी शिफ्ट करा देता है इनटू एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, ठीक है जी। और नंबर ऑफ मेडिकेशंस, जैसे कि वही बात की पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, या आप एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देते हैं, या एनसेड्स दे रहे हैं, तो इनकी वजह से भी पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो आपने इन ड्रग्स पे भी चेक रखना है कि आप कौन सा आया पेशेंट ड्रग ले रहा है। हाइपरकैलिमिया की वजह से क्या होगा, आपके जीआई अपसेट्स हो सकते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, इंटेस्टाइनल कॉलिक, पेन या डायरिया। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स range from weakness to standing paralysis to expiratory failure। अब ये कितना सिवियर कंडीशंस हैं जो कि आपके पैरालिसिस करा रहे हैं या रेस्पिरेटरी मसल्स फेलियर करा रहे हैं। अर्ली severe signs will be apparent from ECG changes and eventually lead to hemodynamic symptoms of arrhythmia and cardiac arrest। Tall T waves मिलती हैं in case of hyperkalemia, flattened P wave and prolonged PR interval, right। अब हाइपरकैलिमिया को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको सबसे पहले तो आपने अपना जो कार्डियक अरिथमियाज ये करा सकता है, उसकी सेफ्टी के लिए आपने सबसे पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है 10 ml of 10%, then 50 ml of 50% glucose with 10 units of insulin और salbutamol, बिकॉज बीटा एगोनिस्ट क्या करते हैं, ये जो बीटा एंटागोनिस्ट हैं, सॉरी एगोनिस्ट, साल्ब्यूटामॉल बीटा एगोनिस्ट है, तो क्या करते हैं, ये भी पोटाशियम को कम करवाते हैं, ठीक है। दिस विल पुश द पोटाशियम फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इनटू सेल्स के अंदर पंप करा देंगे। एसिडोसिस इज करेक्टेड बाय सोडा बाइकार्बोनेट, बट एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट may aggravate acidosis as it is converted into CO2 into the cells. So ion exchange reactions are given to neutralize excess potassium. Dialysis is a in severe conditions in severe form. So this is all about sodium and potassium. Now we will go for calcium. Hypocalcemia is defined as serum calcium below 8.5. So the causes of hypocalcemia include pancreatitis,
पैंक्रेटाइटिस में क्या होता है कि जब आपका कैल्शियम जो है वो फैटी एसिड्स के साथ मिलके मिल जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाता है, या massive soft tissues infections such as necrotizing fasciitis या रीनल फेलियर। रीनल फेलियर्स के केसेस में आपके पास हाइपोकैल्सीमिया की पिक्चर आती है, abnormalities in magnesium levels and tumor lysis syndrome. In addition, transient hypocalcemia commonly occurs after removal of parathyroid adenoma. Parathyroid glands क्या करते हैं आपके कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करते हैं। जब इसमें ट्यूमर आता है ड्यू टू एट्रोफी ऑफ द रिमेनिंग ग्लैंड, आपका ट्रांजिट हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाता है। यहाँ डिक्रीज इनटेक की वजह से भी होता है। सो क्या होता है, in general neuromuscular and cardiac symptoms do not occur until the ionized fraction falls below 2.5। मतलब कैल्शियम लेवल्स का अगर जो एक तो बाउंड फॉर्म होती है, एक आयोनाइज्ड फॉर्म होती है। आयोनाइज्ड फॉर्म जब कम होती है तब इफेक्ट्स आते हैं। उसमें क्या क्या आता है आपको, स्टैटनी, क्रैम्प्स, low calcium levels cause muscle spasm, cramps, paresthesia of the face and extremities, इसको शोविस्टिक साइन भी कहते हैं, spasms resulting from tapping over the facial nerve, atrocious sign कहते हैं spasms resulting from pressure applied to the nerves and vessels of the upper extremity with the blood pressure cuff. So hypocalcemia can or may lead to decreased cardiac contractility and heart failure. ECG series of prolonged in hypocalcemia, what happens? Prolonged QT interval and T wave inversion, and maybe heart block or ventricular fibrillation. तो इसमें आप मैग्नीशियम लेवल्स पे चेक रखना होता है, बिकॉज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का आपस में एक आप कह लें कि दोनों एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे होते हैं। सो हाइपोमैग्नीसीमिया होगा तो हाइपोकैल्सीमिया भी हो जाएगा। When hypokalemia or hypocalcemia coexist with hypomagnesemia, magnesium should be aggressively replaced to assist in restoring. So ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सो जब आप हाइपोमैग्नीसीमिया को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पोटाशियम और कैल्शियम लेवल भी करेक्ट होगा। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट imbalance and its management. The very important topic and very important thing to discuss. So, this is all about electrolyte imbalance or electrolyte management. Thank you, Ji. Allah Hafiz.